have started the recording of this lecture. So up till now we have seen all these things in our previous lectures, and now today we will go for the stabilized reactance modulator, that is AFC. So what is the stabilized reactance modulator? It is known as the AFC, that is automatic frequency control. So in the automatic frequency control, the block diagram is as shown. You have the reactance modulator, crystal oscillator, mixer, IF amplifier, discriminator, limiter, buffer, master oscillator. So we have seen the reactance modulator, that we have given the AF input. Then the crystal oscillator will generate the frequency. Mixer is used to generate the intermediate frequency. IF amplifier will increase the watt strength of the intermediate frequency. Now the purpose of the discriminator is nothing but it acts as a de-emphasis circuit. Discriminator means de-emphasis. Yesterday we have seen the pre-emphasis, de-emphasis, all these things. Today we have to see the discriminator. Discriminator is nothing but the de-emphasis circuit. Now there is a buffer, master oscillator, and limiter. Limiter is nothing but the noise limiter, which protects the communication system with from the noise. So what is the pilot signal? In telecommunication, a pilot signal is a signal usually having a single frequency. It is transmitted over a communication system for supervisory control, equalization, continuity, synchronization for reference purpose. In FM stereo broadcasting, a pilot tone of the 19 kHz indicates that there is a stereophonic information. Stereo means two. देखो, हमें दो आंखें दी गई है, हमें दो कान है, two nostrils. Why? Because if one eye and one ear is also enough, but still we have the two eyes, two ears, two nostrils, because it is what the stereo effect. Stereo means double. Okay, so in case of stereo, what we are having, you have seen the Dolby digital sound. Dolby means, again, it is an extended version of the stereo, that is double. Okay, so this is the what stereophonic signal. Now we will discuss this. So this is nothing but the stereophonic system. The receiver doubles the frequency of the pilot tone and uses as a phase reference to demodulate the stereo information. Stereo means music or sound that comes from two or more speakers and seems to surround you. ये स्टीरियो का मैंने मीनिंग लिखा है यहाँ पे. तो ये ब्लॉक डायग्राम है स्टीरियोफोनिक का. इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स दिया है, उसमें लेफ्ट चैनल और राइट चैनल है. सम और डिफरेंस दोनों आउटपुट आते हैं. and there is a 19 kilowatt sub carrier generator, frequency doubler, balance modulator, SCA, that is supervisory communication system. Okay, then there is a adder, frequency modulator, and FM output. So there is a spectrum of the stereo FM. Here you are having the optical SCA, that is the subsidiary communication authorization. SCA means subsidiary communication authorization, difference channel, and sum channel. Sum channel is L plus R, difference channel is L minus R. लेफ्ट एंड राइट समझ में आ रहा है क्या? सम चैनल और डिफरेंस चैनल क्या है? सम चैनल है लेफ्ट चैनल, डिफरेंस चैनल है राइट चैनल. So it is a modulation system in which sufficient information is sent to the receiver to enable it to reproduce original stereo material. In stereo FM, it is possible to have two channel system with left and right channels simultaneously and independently. It consists of the blocks SCA, a matrix. The two channels in the FM stereo multiplex systems are passed through a matrix which produce two output. The first output is the L plus R and the second output is the L minus R. Now the difference signal is applied to the balance modulator which suppresses the carrier. The resulting two sidebands are then used for the modulating signal as duly transmitted.
Here frequency doubler is used to produce guard band to make less interference. guard band यानी क्या होता है कि अभी हमें लेस इंटरफेरेंस यानी दूसरे जो चैनल है वो इसमें मिक्स नहीं होने चाहिए। तो जैसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम गार्ड लगाते हैं, तो यहाँ पे कौन सिक्योरिटी करेगा फिर इंटरफेरेंस रोकने के लिए, यानी दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट हमारे कॉलेज में अननेसेसरी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इंटरफेरेंस हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा कुछ सिग्नल यहाँ पे रिसीव नहीं होना चाहिए, जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ वही होना चाहिए रिसीव। तो ये कौन करेगा, ये करेगा अब व्हाट गार्ड बैंड फ्रीक्वेंसी करेगा। गार्ड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या करेगा कि जो एक्चुअल सिग्नल जो ट्रांसमिट हुआ है उसको ही वो क्या करेगा, रिसीव भी करेगा। The SCI is used to limit the amplitude level and sum and difference signal in order to prevent the over modulation। तो SCA का काम है ओवर मॉड्यूलेशन प्रोटेक्ट करना, फ्रीक्वेंसी डबलर का काम है गार्ड बैंड प्रोड्यूस करना, यानी कोई भी दूसरा नॉइज़ या अदर सिग्नल नहीं इसमें इंटरफेरेंस होनी चाहिए। द रिजल्टिंग टू साइड बैंड्स आर देन हैज़ द मॉड्यूलेशन। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर का काम क्या है, कैरियर को हटाना, और SCA जो होता है सब्साइडरी कम्युनिकेशन ऑथराइजेशन, ये पूरे के पूरे सिस्टम पे क्या करता है, ऑथराइज करता है। ऑथराइज करना यानी गवर्न करता है, रेगुलेट करता है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द व्हाट, स्टेरियोफोनिक ट्रांसमीटर। ये आपका स्टेरियोफोनिक ट्रांसमीटर है। स्टेरियो यानी म्यूजिक और साउंड दैट comes from the two or more speaker and seems to surround you। ओके, ऐसा लगता है ना हमें टॉकीज़ में जाने के बाद, जो भी हम मूवी देखते हैं या कुछ और देखते हैं, तो उसमें कुछ और प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं, तो उसमें कैसा लगता है हमें कि पूरा का पूरा साउंड हमारे आजू बाजू में चल रहा है क्या। ओके, सो क्योंकि सिस्टम ही ऐसे लगाए हैं, वहाँ पे स्पीकर ही ऐसे लगाए हैं कि वो क्या होता है, फिर स्टीरियो इफेक्ट देते हैं। ओके, सो दैट स्टीरियो इफेक्ट इज नथिंग बट द स्टीरियोफोनिक FM, दैट इज द स्टीरियो FM ट्रांसमीटर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, और तो ये यूनिट हमने 6 से 7 लेक्चर में अभी कंप्लीट किया है। मैं अभी रिवाइज कर देता हूँ आपको पूरा का पूरा यूनिट। इट विल टेक सम 15 मिनट्स। देखो, हमने स्टोरी यहाँ से स्टार्ट की थी कि LC सर्किट ही यूज़ होते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, लेकिन इंडक्टर को वेरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है। इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है, कैपेसिटर। और वो भी कौन सा कैपेसिटर है, वैरेक्टर डायोड वाला कैपेसिटर या फेट मॉड्यूलेटर वाला कैपेसिटर। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ FM, सॉरी 1 मिनट। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ FM, डायरेक्ट FM जनरेशन, इनडायरेक्ट FM जनरेशन। बाद में देखा हमने नैरो बैंड FM एंड वाइड बैंड FM। डायरेक्ट FM जनरेशन में क्या आता है, फेट और वैरेक्टर डायोड आता है। इनडायरेक्ट FM जनरेशन में क्या आता है, फेज मॉड्यूलेशन। और उसमें हमने कौन सी मेथड देखी है, आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड देखी है। ओके, सो द क्लासिफिकेशन इज़ डन ऑन द बेसिस, ये आप पढ़ लेना, मैं आज नोट्स अपलोड करने वाला हूँ, तो ये यूनिट के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। और प्रीवियस आई थिंक 4th यूनिट के भी मैंने अपलोड नहीं किए हैं नोट्स, तो वो भी आज ही अपलोड करने वाला हूँ गूगल क्लासरूम पे, तो आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर इज़ नथिंग बट इट कन्वर्ट्स फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इनटू द एम्पलीट्यूड वेरिएशन। एम्पलीट्यूड वेरिएशन यानी कौन से वेरिएशन, वोल्टेज और करंट वेरिएशन। एंड दैट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर इज नथिंग बट द डायरेक्ट FM जनरेशन। तो डायरेक्ट FM जनरेशन का हमें मैथमेटिकली हमने देखा इसको पूरा, और सिमिलरली यूजिंग वैरेक्टर डायोड भी देखा। सो यूजिंग वैरेक्टर डायोड यू आर हैविंग दिस सर्किट। लेकिन वैरेक्टर डायोड का प्रॉब्लम हमने देखा कि वैरेक्टर डायोड अगर हमने यूज़ किया तो उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की वजह से एक वोल्टेज के बाद उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हमने फिर ट्रांजिस्टर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर भी देखा।
और इसमें कौन सा हार्टले ऑसिलेटर और कोलपिट्स ऑसिलेटर होते हैं। ओके, और ये हमने ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम भी देखा, उसमें रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर होता है, ऑसिलेटर होता है, एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर होता है, क्लास सी पावर एम्पलीफायर होता है, और ट्रायंगल जो दिख रहा है वो इट इज़ नथिंग बट द सिंबल फॉर एंटीना। ओके, तो ये भी देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा कि यस, ये हो गया आपका डायरेक्ट एफएम जनरेशन। फिर हमने देखा कि इनडायरेक्ट एफएम जनरेशन क्या होता है। इनडायरेक्ट एफएम जनरेशन इज नथिंग बट एफएम जनरेशन बाय यूजिंग द फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन करके भी हम एफएम जनरेशन कर सकते हैं। उसमें हमने देखा कि आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड क्या है। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड में फेज शिफ्टिंग मेथड है और फेज मॉड्यूलेशन है। ओके, तो ये हमने कल ही देखा टॉपिक। उसके बाद हमने देखा नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम। नैरो बैंड एफएम में क्या होता है कि नैरो बैंड एफएम में जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होता है और उसकी बैंडविड्थ भी छोटी होती है, उसको प्री एम्पेसिस और डी एम्पेसिस लगता है। वेयर एज वाइड बैंड एफएम जो है उसकी जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है और उसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होती है। प्री एम्पेसिस क्या है? प्री एम्पेसिस यानी आर्टिफिशियली सिग्नल को, ट्रांसमिटिंग सिग्नल को बूस्ट करना, कहाँ पे? ट्रांसमीटर साइड में। वेयर एज डी एम्फेसिस क्या है? जो भी आर्टिफिशियली बूस्ट किया था हमने उसको ओरिजिनल लेवल तक लेके आना। तो ये हमने कल देखा। आज हमने देखा ये AFC दैट इज़ ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। उसमें हमने देखा कि उसमें रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है, मिक्सर है, IF एम्पलीफायर है, डिस्क्रिमिनेटर है, लिमिटर है, बफर है और मास्टर ऑसिलेटर है। तो दैट इज़ नथिंग बट द ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अब यहाँ पे AGC नहीं है। Automatic gain control is related with the amplitude modulation, whereas automatic frequency control is associated with the what? With frequency modulation. Okay, so उसमें रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर है, मास्टर ऑसिलेटर है, बफर है, लिमिटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है, मिक्सर है, IF एम्पलीफायर और डिस्क्रिमिनेटर है। डिस्क्रिमिनेटर यानी इट एक्ट्स एज अ डी एम्फेसिस सर्किट। ओके, it acts as a de-emphasis या demodulation circuit. So then we have seen the pilot signal. क्या होता है pilot signal? Pilot signal is the subsidiary control signal which is used for the communication system for supervisory control, equalization, continuity, synchronization for the reference purpose in FM stereo broadcasting. फिर हमने देखा कि स्टीरियो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। आज का टॉपिक था हमारा। कल मैंने बोला था आपको कि हमारा आज लास्ट टॉपिक चलेगा इस यूनिट का। तो ये ब्लॉक डायग्राम है स्टीरियो एम्पलीफायर का। इसमें क्या है? इसमें एक मैट्रिक्स है, 19 किलोहर्ट्ज सब कैरियर जनरेटर है, फ्रीक्वेंसी डबलर है, बैलेंस मॉड्यूलेटर है और CA है। ओके, तो स्पेक्ट्रम ऑफ द स्टीरियो FM दैट वी हैव सीन कि इसमें स्टीरियो यानी म्यूजिक और साउंड दैट कम्स फ्रॉम द 2 और मोर स्पीकर्स एंड सीम्स टू सराउंड यू। ये ऐसा एक सिस्टम है कि जिससे लगता है कि हमें हमारे जो आजू बाजू में सराउंडिंग में साउंड है क्या। दैट इज़ नथिंग बट द स्टीरियो। इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है डॉल्बी डिजिटल साउंड। ओके, सो इट इज़ द FM स्टीरियो ट्रांसमीटर। ऐसा ही हमें यूनिट नंबर 6 में FM स्टीरियो रिसीवर भी देखना है। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है आपके। इट इज़ द ओके, स्टीरियो क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज स्टीरियो में क्या होता है कि मॉड्यूलेशन सिस्टम इन विच सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इज सेंड टू द रिसीवर टू एनेबल इट टू रिप्रोड्यूस ओरिजिनल स्टीरियो मटेरियल। सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है म्यूज़िक सिस्टम में या टेलीविज़न इंडस्ट्री में, स्टीरियो वाला। इन स्टीरियो FM इट इज़ पॉसिबल टू हैव 2 चैनल सिस्टम विथ लेफ्ट एंड राइट चैनल। ये आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये। उसमें देखो फ्रीक्वेंसी डबलर का काम क्या है? गार्ड बैंड प्रोड्यूस करना। SCA क्या होता है? सबसाइडरी कम्युनिकेशन ऑथराइजेशन होता है। बैलेंस मॉड्यूलेटर ये हमें कैरियर को निकाल देता है, जस्ट 2 साइड बैंड रहते हैं। और एडर इज़ जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एडर इज़ नथिंग बट, देखो एडर के इनपुट्स कितने हैं? देयर आर 4 इनपुट्स टू द एडर। आई विल यूज स्पॉटलाइट हियर। ओके, ये देखो एडर के कितने इनपुट्स हैं? एडर के 4 इनपुट्स हैं और उसका आउटपुट कितना है? 1। सो इट इज़ एक्टिंग लाइक अ
मल्टीप्लेक्सर। ओके, वो मल्टीप्लेक्सर जैसा एक्ट हो रहा है, इट इज़ एक्टिंग लाइक अ मल्टीप्लेक्सर। कौन? एडर। इसका एक ही आउटपुट होता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर एफएम आउटपुट, फिर ये एंटीना वगैरह फिर से रहेगा। इसके आगे और ब्लॉक्स है, लेकिन सिंपल सिस्टम ये है। ये टेक्स्ट बुक में ऐसे ही डायग्राम दिया है। इसके आगे अब सारा एफएम एम्पलीफायर लगेगा, सब लगेगा, एम्पलीफायर्स लगेंगे। ओके, सो एंड दिस इज द frequency spectrum of the stereo FM transmitter. So that completes our unit number 5. Now I think we have, देखो हर एक यूनिट को एक्चुअली कितने लेक्चर्स लगते हैं? 8 लेक्चर्स लगते हैं। तो अभी तक 40 लेक्चर्स हो गए हैं हमारे, लेकिन 40 नहीं हुए लेक्चर्स, 30 to 35 लेक्चर्स हुए हैं। क्यों? बिकॉज आपको पता है आई एम कंडक्टिंग लेक्चर एंड यू आर इन द लेक्चर ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में ये डायग्राम ड्रॉ करना या इसमें हमारा टाइम नहीं जा रहा है। अब डायरेक्टली मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं और नोट्स पे से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो दैट्स वाई इन 35 लेक्चर्स वी आर एबल टू कंप्लीट आवर 5 यूनिट्स। अभी जो लास्ट यूनिट बचा है उसको आई थिंक इतने ही 6 से 7 लेक्चर्स लगेंगे, तो हमारा लास्ट यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सिलेबस में डिक्लेयर नहीं करूँगा। मैं फिर से आगे वाले 2-3 लेक्चर्स में फिर से पूरा के पूरे अपना फर्स्ट यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक पूरा का पूरा मैं क्या करूँगा, रिवाइज करूँगा। यानी सिलेबस अगले वीक में शायद से अगले ट्यूसडे तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो टाइम बचता है हमारे पास, बिकॉज स्टिल नाउ वी हैव नॉट स्टार्टेड आवर प्रैक्टिकल बैचेस। सो जहाँ तक कि प्रैक्टिकल बैचेस नहीं स्टार्ट होती, वहाँ तक मैं कंप्लीट रिवीजन लेने वाला हूँ। तो जिसको अटेंड करना है वो अटेंड करेगा, जिसको अटेंड नहीं करना है वो नहीं करेगा। दैट इज़ योर लुकआउट। क्योंकि यही लेक्चर्स मैंने कल आप देखा होगा, अगर आपने विज़िट किया होगा गूगल क्लासरूम, तो यूट्यूब की लिंक डाली है। क्योंकि फिर से वही प्रॉब्लम है, अगर मैं यूट्यूब की लिंक नहीं डालता हूँ तो मेरे जो स्पेस है ड्राइव का वो ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए मैं वो ड्राइव के सारे वीडियोस डिलीट करने वाला हूँ और आपको सिर्फ यूट्यूब के लिंक्स मिलेंगे अब इसके आगे। वो पहले के वीडियोस पहले के लेक्चर्स आप पूरे के पूरे डाउनलोड करके रख दो, क्योंकि मैं वो जल्दी से जल्दी हटाने वाला हूँ। सो यूनिट नंबर 5 इज़ कंप्लीट। आई थिंक टुडे इज़ द 30th और 35th लेक्चर। इसके बाद हम कल से देखेंगे हमारा यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 है एफएम रिसीवर। ओके, निखिल इज सेइंग ही हैज़ डाउनलोडेड ऑल द ड्राइव। ओके, वेरी गुड। सो I think only one student is present online, so no problem. So I will end this lecture here, and tomorrow we will see the unit. From tomorrow we will see the unit number 6, and we will rejoin tomorrow. So thank you, and I think only one student is present. Okay, no problem.